السلام علیکم ویورز، آپ سب کا ویلکم ہے ہمارے اس چینل میں۔ اگر ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ دریائے نیل کی موجیں آہستہ آہستہ بہہ رہی تھیں۔ سورج اپنی سنہری کرنیں مصر کے کھیتوں پر بکھیر رہا تھا۔ کھجور کے درخت جھوم رہے تھے، محلات کے مینار آسمان کو چیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف سونا، دولت اور شان و شوکت کا راج تھا۔ مصر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھا اور اس سلطنت کا بادشاہ تھا فرعون۔ فرعون ایک اونچے تخت پر بیٹھتا تھا، اس کا تاج ہیروں سے جگمگاتا۔ ہزاروں غلام، سپاہی اور درباری اس کے آگے جھکتے رہتے۔ وہ غرور سے کہتا، انا ربکم اعلی، باللہ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جس جملہ سنتے ہی درباری کانپ جاتے، سپاہی سجدے میں گر جاتے، عوام کی زبانیں کنگ ہو جاتی۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ کہے نہیں تو خدا نہیں ہے۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ اس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اپنی سلطنت کو لافانی سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک نہ کوئی طاقت تھی، نہ کوئی خدا، بس وہ خود تھا اور وہ خود تھا۔ لیکن اس کی شان و شوکت کے نیچے ایک ایسی قوم بھی تھی جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب کی اولاد تھے۔ ان کی تعداد بڑھ رہی تھی لیکن ان پر ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ صبح ہوتی تو فرعونی سپاہی ان کے گھروں کے دروازے پر ڈنڈے مارتے اور حکم دیتے، اے غلاموں، کھیتوں میں جاؤ، محلات کے لیے اینٹیں ڈھاؤ، شاہی تعمیرات میں پسینہ بہاؤ۔ بوڑھے مرد بیڑ کے ساتھ دھکیل دیے جاتے، جوانوں کو کوڑوں سے ہانکا جاتا، عورتیں کپڑوں میں روتی تھی، بچے بھوک سے بلبلاتے، لیکن کھانے کو صرف سوکھی روٹی ہی ملتی تھی۔ جب کبھی کوئی بنی اسرائیل تھکن سے گر پڑتا تو سپاہی کوڑا مارتا اور کہتا، اٹھ، تو زندہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے فرعون کی خدمت کرے۔ ایک دن مصر کے بازار میں جشن تھا، رنگ برنگی جھنڈیاں، خوشبوئیں، رقص، گانے، سب کچھ جاری تھا۔ ہزاروں لوگ تالی بجاتے، فرعون کے نام کے نعرے لگاتے، ہمارا رب، ہمارا بادشاہ فرعون۔ فرعون تخت پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے لوگو، دیکھو، یہ دریائے نیل، یہ آسمان، یہ زمین سب میری ملکیت ہے۔ میں تمہارا رب ہوں۔ میں سنو، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے لیکن میں۔ لوگ خوف سے کانپ گئے، کچھ نے آنکھوں سے آنسو چھپائے، کچھ نے ہاتھ باندھ کر سجدہ کیا۔ لیکن بنی اسرائیل کے دل میں ایک درد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا یہ ظالم نہیں، کوئی اور ہی ہے۔ وہ راتوں کو دعائیں کرتے، اے رب کائنات، ہمیں اس ظلم سے نجات دلا۔ ایسے ہی دنوں میں فرعون کو ایک خواب آیا جس نے اس کے غرور کو خوف میں ڈال دیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں سے ایک آگ اٹھی ہے۔ وہ آگ بڑھتے بڑھتے محلات کو جلاتی جا رہی ہے۔ تخت ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، تاج نیچے گر جاتا ہے اور مصر کی سلطنت مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ فرعون کے چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ صبح درباری بلائے گئے، بڑے بڑے جادوگر، نجومی، تعبیر بتانے والے سبھی حاضر ہوئے۔ سب نے ایک ہی بات کہی، اے بادشاہ، یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ چلایا، اگر ایسا ہے تو سن لو، آج سے بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب قتل کر دیے جائیں اور لڑکیاں زندہ رکھنے دی جائیں۔ اے سننے والوں، سوچو، اس دن مصر کی گلیاں چیخوں سے بھر گئی ہوں گی۔ سپاہی گھروں میں گھس گئے، نوزائیدہ بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیا گیا۔ مائیں بلک بلک کر رو رہی ہیں، بچوں کی چیخ فضا کو چیر رہی ہے، لیکن سپاہی تلوار چلاتے جا رہے ہیں۔ خون زمین پر بہہ رہا ہے مگر ماں زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ منظر صرف ایک گھر میں نہیں، ہزاروں گھروں میں تھا۔ مصر کی فضا آہوں اور سسکیوں سے بھر گئی تھی۔ دریائے نیل کا پانی سرخ نظر آتا تھا، جیسے ظلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔ مصر کی فضا اب بھی چیخوں اور آہوں سے گونج رہی تھی۔ فرعونی سپاہی گھروں کو کھنگالتے،
नौज़ायदा बच्चों को तलाश करते और जालिमाना तरीके से कत्ल कर देते। हर नई आने वाली सुबह बनी इसराइल के लिए कयामत का मंजर लेकर आ रही थी। लेकिन इन्हीं दिनों में बनी इसराइल के घर में एक अजीम मौजज़ा होने वाला था। आइए आपको बताते हैं कि वो मौजज़ा क्या था। एक नेक औरत हजरत योकाबिद मूसा की वालदा एक रात दुआ में रो रही थी। उनका दिल डूबा हुआ था। वो जानती थी कि अगर बच्चा हुआ तो फिरौनी सिपाही इस मासूम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसी रात अल्लाह की कुदरत से उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। यह बच्चा आम बच्चा नहीं था। उसके चेहरे से नूर झलक रहा था, आंखों में अज़्म की रोशनी थी। माँ ने जैसे ही उसको देखा, उनके दिल में एक सुकून की अजीब सी लहर दौड़ गई। लेकिन फौरन ही खौफ ने उनके दिल को जकड़ लिया। अगर सिपाहियों को पता चल गया तो मेरा लाल छीन के ले जाएंगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रब से फरियाद कर रही थी कि इसी लम्हे उनके दिल में एक अल्हाम हुआ और हमने मूसा की माँ के दिल में डाल दिया कि उसे दूध पिला, फिर जब तुझे खौफ हो तो उसे दरिया में डाल देना, ना घबराना और ना रोना। हम उसे तेरी तरफ वापस लेके आएंगे और उसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। रात के सन्नाटे में जब मिस्र के सिपाही गश्त पर थे, हजरत योकाबिद ने एक छोटी सी पेटी बनाई। लकड़ी की पेटी को अंदर से नरम कपड़ों से भरा। अपने नौमौलूद मूसा को प्यार से उठाया। आंखों में आंसू, दिल में भरोसा और होंठों पर दुआ थी। उन्होंने आखिरी बार बेटे के चेहरे को चूमा। उनकी सिसकियां देती जा रही थी। फिर वह पेटी को दरियाए नील के किनारे ले गई। चांदनी रात थी। नील की मौजें हल्की हल्की लपक रही थी। हजरत योकाबिद ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, ये तेरे हवाले है। पानी की लहरें पेटी को आहिस्ता आहिस्ता बहा कर ले गई। माँ किनारे पर खड़ी देर तक देखती रही, फिर सजदे में गिर के रो। पेटी नील के पानियों में बहती रही। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो सीधी फिरौन के महल के बाग के किनारे जा रुकी। सुबह का वक्त था। महल की लौंडियां गुसल करने दरिया के किनारे आईं। अचानक उनकी नजर एक लकड़ी की पेटी पर पड़ी। ये क्या है? एक ने कहा। वो पेटी को खींचकर किनारे पर लाईं। जैसे ही ढक्कन खोला, अंदर एक मासूम बच्चा सो रहा था। उसके चेहरे पर नूर था। लौंडियां दौड़ कर बच्चा महल में ले आईं। फिरौन की बीवी आसिया बोली, वो जो ईमान वाली और नेक खातून थी। उसने जब बच्चे को देखा तो उसके दिल में मोहब्बत और रहमत की लहर दौड़ गई। उन्होंने बच्चे को उठाया, चूमा और कहा, यह बच्चा तो किसी आसमानी नेमत की तरह है। इसका चेहरा इतना रोशन है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। फिरौन भी वहीं आ गया। वो बच्चे को देखकर चौंका। उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ी। उसे याद आया कि नजूमियों ने कहा था, एक बनी इसराइली बच्चा तेरी सल्तनत को गिरा देगा। फिरौन गर्ज कर बोला, यह बच्चा बनी इसराइल का हो सकता है, फौरन कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आसिया ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, इसे कत्ल मत करो। यह बच्चा तो आंखों की ठंडक है। शायद यह हमारे लिए खुशी का जरिया बनने वाला है। हमें औलाद नहीं मिली, यह बच्चा हमारा बेटा होगा। आसिया की आंखों में आंसू थे, दिल में माँ की तड़प। फिरौन ने कुछ देर सोचा, फिर गुरूर से हंसा और कहा, अच्छा रख लो, देखते हैं यह बच्चा बड़ा होकर क्या कर सकता है। यूं हजरत मूसा अल्लाह की कुदरत से फिरौन के महल में पलने लगे। महल की औरतों ने मूसा को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा किसी का दूध न पीता। महल में शोर मच गया। फिरौन ने कहा, अगर यह बच्चा दूध न पिए तो जिंदा नहीं रहेगा। इसी वक्त अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा की बहन हजरत मरियम, जो बच्चे के पीछे पीछे चल रही थी, आगे बढ़ी और कहा, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसका दूध ये बच्चा पी लेगा। फिरौन ने फौरन कहा, ले आओ उसे। जब हजरत योकाबिद को बुलाया गया तो उन्होंने मूसा को गोद में लिया तो मूसा लपक कर माँ का दूध पीने लग गए। महल की सब औरतें हैरान हो गईं। फिरौन ने कहा, ये औरत हमारे लिए बच्चे की दाया होगी। यूं अल्लाह ने हजरत मूसा को उनकी अपनी माँ की गोद में वापस कर दिया, बिल्कुल जैसे वादा किया था। यह मौजज़ा सिर्फ एक वाकया नहीं था, यह अल्लाह की ताकत का ऐलान था कि चाहे फिरौन पूरी सल्तनत के साथ किसी बच्चे को मारने की कोशिश करे,
अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया है तो कोई भी ताकत उसके हुक्म को टाल नहीं सकती। हजरत मूसा आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजर गया और बड़े हो चुके थे। वो महल की संगे मरमरी दीवारों में सुनहरी जाड़ फानूसों के साए तले जवान हुए। उनके लिबास शाही थे, खाने शाही, दस्तरख्वान के, इल्म के दरवाजे उन पर खोल दिए गए। लेकिन ऐ सुनने वाले, एक बात याद रख, मूसा का दिल महल के गुरूर और तकब्बुर में नहीं डूबा। वो जानते थे कि फिरौनी नहीं बल्कि बनी इसराइल से हैं। उनकी माँ ने बचपन से ही उनके कानों में यह बात डाल दी है, मेरे बेटे, हम गुलाम नहीं हैं, हमारा रब फिरौन नहीं बल्कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल है। यही वजह थी कि जब फिरौन के बेटे केल में मूसा को खुदाई का सबक सिखाने की कोशिश करते तो मूसा खामोश रहते, लेकिन उनके दिल में एक आग जलती थी। महल के दरवाजे के बाहर बनी इसराइल का हाल कुछ और ही था। दिन भर धूप में जलते गुलाम, कोड़ों के जख्मों से कराहते मजदूर और रोते बिलखते बच्चे। मूसा ये सब देखते उनके दिल पर छुरियां चलती थी। अक्सर वो अकेले बैठकर सोचते, कैसे मुमकिन है कि एक इंसान अपने जैसे इंसानों को गुलाम बनाए, और फिर ये फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता है, क्या ये सच है? नहीं, मेरा दिल गवाही देता है कि खुदा सिर्फ एक है। एक दिन मूसा शहर की गलियों में निकले। वो देखते हैं कि एक कुब्ता फिरौनी कौम का शख्स और एक बनी इसराइली आपस में लड़ रहे हैं। कुब्ता ताकतवर था और बनी इसराइली बेबस। वो बार बार फरियाद कर रहा था, मूसा मुझे बचाइए, ये फिरौनी मुझे मार डालेगा। मूसा का दिल जोश में आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर कुब्ता को रोका, लेकिन कुब्ता बाज ना आया। मूसा ने सिर्फ एक मुक्का मारा, लेकिन वो मुक्का इतना जोरदार साबित हुआ कि कुब्ता वहीं गिरकर ढेर हो गया। फिजा सन्नाटे में डूब गई। मूसा घबरा गए। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, यह शैतान का काम था, मेरे रब मुझे माफ फरमा, मैं जालिमों का साथ नहीं देना चाहता था और ना दूंगा। लेकिन शहर में खबर फैल गई, एक कुतबा मारा गया है और ये काम मूसा ने किया है। अगले दिन मूसा फिर शहर में निकले। वही बनी इसराइली फिर किसी दूसरे कुब्ता से लड़ रहा था और फिर मूसा को मदद के लिए पुकारने लगा। लेकिन मूसा ने गुस्से से कहा, तू तो बड़ा झगड़ालू निकला, हर रोज लड़ाई करता है। इस लम्हे कुब्ता ने चिल्लाकर कहा, देखो देखो, ये वही है जिसने कल आदमी को मार डाला था। अब मूसा का राज खुलता जा रहा था। खौफ ने उनके दिल को जकड़ लिया। वो जानते थे कि अगर फिरौन को खबर मिली तो उनकी जान नहीं बचेगी। शाम होते ही दरबार में शोर मच गया। कासिद दौड़ता हुआ आया, बोला, ऐ फिरौन, कल का कातिल यही मूसा है, वो बनी इसराइली है, इसने कुब्ता को मार डाला है। फिरौन ने गुरूर से हंसते हुए कहा, आहा, तो वही ख्वाब हकीकत होने जा रहा है। यही बच्चा है जिसके बारे में कहा गया था कि ये मेरी सल्तनत गिरा देगा। आज ही मूसा को कत्ल कर दिया जाए। कत्ल का मंसूबा तैयार हो रहा था, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए। एक नेक दिल शख्स जो फिरौन के करीबी खानदान से था छुपकर मूसा के पास आया। उसने कहा, ऐ मूसा, दरबार वाले तेरा कत्ल करने की साजिश रचा रहे हैं, अभी भी शहर छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। रात का वक्त था। मूसा का दिल खौफ और उम्मीद से धड़क रहा था। वो खामोशी से शहर की गलियों से निकले। कोई साथी, कोई ज़्यादा सफर, कोई सफारी साथ न थी। वो तन्हा, भूखे और प्यासे मिस्र को छोड़कर निकलते गए। चांदनी रात में उनके कदम तेज थे, लेकिन दिल में एक दुआ जारी थी, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों की कौम से निजात दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा। और यूं हजरत मूसा की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। यह था कहानी का दोस्तों आज तक का पहलू। बकिया कहानी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह।